السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ میں آج ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ جو بائیڈن کی بڑھت مضبوط ہو چکی ہے، اوٹاہا میں جیتے ٹرمپ، فلوریڈا میں آر پار کی جنگ چل رہی ہے۔ امریکہ میں پریزیڈنٹ انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ کچھ ریاستوں میں ووٹنگ بند ہو گئی ہے اور گنتی شروع ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن میں پریزیڈنٹ کون بنے گا، اس کے رجحان بھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظر امریکہ کے انتخابی نتیجوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ CNN کے مطابق صبح 9:15 بجے جو بائیڈن نے نیو ہیمپشائر میں جیت درج کی ہے، جہاں 4 الیکٹورل ووٹ ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوٹاہا میں جیت درج کروا لی ہے، جہاں پر 6 الیکٹورل ووٹ ہیں۔ ابھی 299 سیٹوں پر نتائج آنا باقی ہے۔ جوزف آر بائیڈن جو 131 ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ 108 پر ٹکے ہوئے ہیں۔ متھرا کی ایک مندر میں نماز کے بعد اب متھرا کی عیدگاہ میں ہنومان چالیسا پڑھنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس نے متھرا کی عیدگاہ میں ہنومان چالیسا پڑھنے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایک دن قبل ہی متھرا کی ایک مندر میں نماز پڑھنے پر ایک تنازع پیدا ہوا تھا۔ گرفتار شدگان میں ایک شخص BJP یوتھ ونگ کا مقامی لیڈر بتایا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ افراد، جن کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان ہے، گووردھن برسانہ روڈ پر واقع عیدگاہ میں گھسے اور ہنومان چالیسا پڑھنے لگے۔ اس سے قبل مندر میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں 4 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جن کا تعلق دہلی کی ایک تنظیم خدائی خدمت گار سے بتایا گیا ہے۔ کرناٹک کے وزیر سیاحت اور BJP کے قومی جنرل سیکرٹری TT روی نے کہا ہے کہ ریاست میں شادی کے لیے تبدیلی مذہب پر پابندی عائد کرنے والا قانون نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب جہادی ریاست میں خواتین کی عزت سے کھلواڑ کریں گے تو حکومت خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ حال ہی میں الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ شادی کے مقصد سے مذہب کی تبدیلی غیر قانونی ہے۔ اس سے پہلے BJP زیر اقتدار ریاستیں اتر پردیش، ہریانہ اور مدھیہ پردیش نے لو جہاد کے خلاف قانون بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ روی نے ٹویٹ کیا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خطوط پر کرناٹک میں قانون بناتے ہوئے شادیوں کے لیے تبدیلی مذہب پر پابندی لگائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی مذہب میں ملوث کسی بھی شخص کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بہار میں دوسرے مرحلے کے تحت 54 اسمبلی حلقوں میں 54.64% رائے دہندوں نے ووٹ دیا، جس کے ساتھ ہی عظیم اتحاد کے چیف منسٹر کے عہدے کے امیدوار تیجسوی پرساد یادو کے بشمول 1463 امیدواروں کی قسمت الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں بند ہو گئی۔ دوسرے مرحلے کی رائے دہی پرامن رہی اور ریاست کے کسی بھی حصے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ عظیم اتحاد اور NDA دونوں نے آئندہ حکومت کی تشکیل کے لیے عوام کی تائید حاصل کرنے کے مقصد سے اپنا پورا زور لگایا ہے۔ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار جاریہ اسمبلی انتخابات میں NDA کا چہرہ ہے، جبکہ RJD لیڈر تیجسوی پرساد یادو مہا گٹھ بندھن کے چیف منسٹر کے عہدے کے امیدوار ہیں۔ فروری کے دہلی فسادات سے متعلق مقدمات کے کئی ملزمین کے اس بیان پر کہ انہیں گرم کپڑے جیسی بنیادی چیزیں بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے جیل عہدیداروں پر ناراضگی کا اظہار کیا اور وارننگ دی کہ اگر حالات بہتر نہ ہوں تو جج خود جا کر صورتحال کا معائنہ کریں گے۔ عدالت نے دہلی کی جیلوں کے ڈائریکٹر جنرل کو ہدایت دی کہ وہ تمام 15 ملزمین کی تکالیف کا جائزہ لیں، جن کے خلاف سخت قانون UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بریلی میں درگاہ اعلیٰ حضرت کے مفتی اعظم نے ہندوستان اور سری لنکا کی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ کووڈ-19 سے فوت ہونے والے مسلمانوں کی نعشوں کو زبردستی نذر آتش کرنے سے حکام کو روکیں۔ انہوں نے کہا کہ متوفی مسلمانوں کی تدفین اسلامی طریقے سے انجام دی جانی چاہیے۔ سلمان حسن خان نائب صدر اعلیٰ حضرت درگاہ نے کہا کہ اسلام کسی بھی صورت میں مسلم میتوں کو نذر آتش کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بہار میں دوسرے مرحلے میں 54 نشستوں کے لیے رائے دہی مکمل ہو گئی ہے۔ سابق صدر کانگریس راہل گاندھی نے انتخابی مہم کے لیے بہار پہنچ کر وزیر اعظم نریندر مودی اور نتیش کمار کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں نے مل کر بہار کو لوٹا ہے، اسی لیے بہار کے عوام نے ریاست میں تبدیلی لانے کے لیے اپنا ذہن بنا لیا ہے۔ فرانس میں توہین رسالت کے معاملے میں منور رانا کے حالیہ بیان اور FIR درج ہونے کے بعد اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشد کی ذیلی تنظیم گنگا سینا نے منور رانا کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ گنگا سینا نے منور رانا کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ان کو دیے گئے تمام سرکاری اعزازات کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ الہ آباد میں گنگا سینا کے صدر مہنت آنند گری نے بیان جاری کر کے مشاعروں سے منور رانا کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد میں پولیس نے 27 سالہ ایک خاتون کو گرفتار کیا ہے، جس نے گزشتہ 3 ماہ کے دوران 3 افراد سے شادی کر کے دھوکہ دیا۔ ہر شادی کے بعد وہ زیورات اور قیمتی اشیاء لے کر فرار ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ریکٹ میں شامل ہو کر اس نے 3 معصوم افراد کو دھوکہ دیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں اس کا اصل شوہر بے روزگار ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ اس سرگرمی میں ملوث ہو گئی۔
मुल्क की 10 रियासतों के 54 असेंबली हलकों के लिए ज़मीनी इंतखाबात के दौरान रायदही पुरअमन रही। इनमें मध्य प्रदेश के 28 असेंबली हलके शामिल हैं, जहां बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। कोविड-19 के रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये इंतखाबात मुनक्किद किए गए थे, जहां इंतखाबी अमले को PPE सूट्स में देखा गया और कई पोलिंग मराकज़ पर ज़्यादा हुजूम को जमा होने नहीं दिया गया। सिवाय छत्तीसगढ़, झारखंड और नागालैंड के तमाम रियासतों में रायदही सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही। आखिरी वक्त तक पोलिंग मरकज में कतार में खड़े हुए रायदहिंदों को हक रायदही का इस्तेफादे का मौका दिया गया। बॉलीवुड के मुमताज नगमा निगार जावेद अख्तर ने मुतनाज़ा अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया है। इनका इल्जाम है कि एक टेलीविजन प्रोग्राम के दौरान कंगना ने इनके खिलाफ हद तक आमेज और बेबुनियाद तबसरे किए थे। अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज करते हुए जावेद अख्तर ने ताज़रात हिंद की दफात पर हद तक इज्जत के तहत कंगना के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर तबसरा करते हुए कंगना रनावत ने जावेद अख्तर का नाम भी मखसूस दरबारियों में शामिल होने का इल्जाम लगाया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन जमातों को निशाने तनकीद बनाते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ ये सीखा है कि समाज में फूट डाली जाए और हर हाल में कामयाबी हासिल की जाए। मोदी ने कहा कि NDA हुकूमत ने अपनी गुज़िश्ता मियाद में बिहार में तमाम बुनियादी सहूलतों को यकीनी बनाया और अब वो बरसर इख्तिदार आने पर अवाम की तमाम उमंगों की तकमील करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर साबिक़ सदर कांग्रेस राहुल गांधी और RJD सदर तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर इन पर तंज किया। मोदी ने कहा कि बिहार के अवाम ने जंगल राज और दोहरे युवराज को मुस्तरद कर दिया है। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार मधुबनी जिले में एक रैली से खिताब कर रहे थे कि अचानक इन पर प्याज फेंककर हमला किया गया। तीसरे मरहले के तहत नीतीश कुमार रैली से खिताब कर रहे थे, जबकि दूसरे मरहले के लिए मंगल को वोटिंग हुई। प्याज नीतीश कुमार की तरफ मुसलसिल फेंकी जा रही थी। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने बड़े सब्र व सुकून के साथ अपना बयान जारी रखा और कहा कि आप प्याज बरसाते रहो, इसका कुछ असर नहीं होगा। बीजेपी रुकने असेंबली हल्के सरधना मेरठ संगीत सोम ने हिंदू नौजवानों से कहा है कि वो बेदार हो जाएं और लव जिहाद मसले में जैसे को तैसा की पॉलिसी पर अमल करें। उन्होंने हिंदू नौजवानों से कहा कि वो पुलिस कार्रवाई तक इंतजार ना करें। नौजवानों को चाहिए कि वो जिहादियों को सबक सिखाएं। पुलिस और कानून अपना काम करेंगे, लेकिन हम इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। संगीत सोम ने कहा कि डंडा उठाओ या जूता, लेकिन सबक जरूर सिखाओ। इजहार की आज़ादी के नाम पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की फ्रांसीसी तायीद से पैदा मुतनाज़ा माहौल में मुत्तहिदा अरब इमारत ने यह तजवीज़ पेश की है कि मगरिब के मुसलमान वहाँ के मुआशरे का हिस्सा बनने की कोशिश करें। UAE के वज़ीर ख़ारजा अनवर खरकाश ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों पर मगरिबी मुआशरों में इंज़माम की ज़रूरत पर जोर दिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इमारती वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मुसलमानों को फ्रांसीसी सदर की तकरीर को तवज्जो से सुनना चाहिए, क्योंकि मैक्रोन मगरिब में मौजूद मुसलमानों को अलग थलग नहीं करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि अब अपनी सनतें बंद नहीं करेंगे, क्योंकि मुल्क दोबारा लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में अपनी मुआशी टीम के हमरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने छोटी सनतों के लिए पैकेज का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि छोटी सनतों को इजाफी बिजली 50% से कम कीमत पर फराहम करेंगे। कोरोना से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से मास्क के इस्तेमाल की अपील की। मास्क ना पहनने और तकरीबात में ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों की वजह से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र सऊदी अरब में फिर लॉकडाउन किया जा सकता है। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अली का बहरहाल कहना है कि मुल्क में लॉकडाउन के निफाज का कोई भी फैसला मुतालिका मजलिस की सिफारिश पर किया जाएगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक मजमूई तौर पर 5437 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना के मरीजों की तादाद 3,48,037 बताई गई है। डॉक्टर अली ने यह भी कहा कि सऊदी अरब कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से मुरतब फहरिस्त में 27वें नंबर पर पहुंच चुका है। तेलंगाना के हल्के असेंबली दोबाग के ज़मीनी इंतखाबात में शाम 5 बजे तक 81.44% रायदही रिकॉर्ड की गई। शाम 5 बजे तक 6 बजे तक कोरोना से मुतासिर अफराद को हक रायदही से इस्तेफादे का मौका फराहम किया गया। सिवाय चंद एक मुकामात पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के नाकारा होने के मजमूई तौर पर रायदही पुरअमन रही। दोबाग असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब की रायदही इख्तिताम को पहुंचने के साथ ही चंद इदारों ने एग्जिट पोल जारी करते हुए TRS और BJP की कामयाबी की पेशकशी की है। 3rd डिवीज़न रिसर्च एंड सर्विस ने एग्जिट पोल के नतायज जारी करते हुए बताया कि TRS की उम्मीदवार S सुजाता भारी अक्सरियत से कामयाब होंगी और वो 51 से 54% वोट हासिल करते हुए सरफहरिस्त रहेंगी, जबकि 33 से 36% वोट हासिल करते हुए BJP उम्मीदवार रघुनंदन राव दूसरे नंबर पर रहेंगे, जबकि 8 से 11% वोट के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार श्री श्रीनिवास रेड्डी तीसरे मुकाम पर हो सकते हैं। साथ ही पॉलिटिकल लेबोरेटरी इदारे ने एग्जिट पोल के नतायज जारी करते हुए BJP की कामयाबी की पेशकशी की।
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने कमिश्नर जीएचएमसी को हिदायत दी है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुजवदा इंतखाबात में सियासी जमातों और इनके उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम की यकसा तौर पर सहूलतें फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में पार्टियों और उम्मीदवारों की जानिब से तरह तरह के तरीके इख्तियार किए जाते हैं। होर्डिंग्स, यूनिफ्लेक्स, बस शेल्टर्स, मेट्रो पिलर्स और दीगर मुकामात को इंतखाबी तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इंतखाबी तशहीर के काम के जिम्मेदार इदारों को चाहिए कि वो तमाम पार्टियों और उम्मीदवारों को यकसा मौका फराहम करें। सियासत एजुकेशन फेयर के 3 रोज़ा प्रोग्राम का कामयाब इख्तिताम अमल में आया। इसमें आला तालीमी इदारों ने हिस्सा लिया। MS एजुकेशन अकेडमी इसके अहम स्पॉन्सर रहे। इदारे सियासत जो एक तहरीक है, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे जात में सरगर्म अमल है। तालीमी शोबे में एजुकेशन फेयर का इनेकाद इस सिलसिले की एक कड़ी है। 3 रोज़ा एजुकेशन फेयर में हज़ारों लड़के लड़कियों और औलियाए तलबा ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ प्रोफेशनल व दीगर अहम कोर्सेस में दाखिले की रहनुमाई हासिल की और इस ज़िमन में अपने शुकूक व शुबात का अज़ाला किया। हैदराबाद, सिकंदराबाद के अलावा अजला से बेशुमार अफराद ने इस तालीमी मेले में हिस्सा लिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने गैर ज़रई अराजियात व जायदादों की तफसीलात धरानी पोर्टल में पेश करने पर उबूरी हुक्म इल्तवा जारी किया है। अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो धरानी पोर्टल के लिए गैर ज़रई जायदादों के इंदराज के लिए अवाम पर दबाव न डालें और ऐसा डाटा हासिल करने के लिए इसरार न करें जिससे शहरियों की निजी जिंदगी पर असर पड़ सकता है। फलकनुमा के अलजुबेल कॉलोनी से गुजरने वाले मुर्की नाले के काम जारी हैं। कॉलोनी के तमाम गलियों में सफाई की खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। जीएचएमसी के सैनिटरी अमले को पाबंद किया गया है कि तमाम गलियों से कचरा और मिट्टी को निकाला जाए। खानगी लेबर मुकर्रर कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता दिनों के दौरान अलजुबेल कॉलोनी से जो कचरा और कीचड़ निकाला जा रहा था, इसे मेन रोड पर जमा किया जा रहा था, लेकिन मेन रोड पर गंदगी के ढेर जमा होने पर मुकामी लोगों ने एतराज़ किया तो सफाई कर दी गई। हुसैन सागर के अतराफ सयाहत के फरोख के बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्वनस अरविंद कुमार ने बताया कि अवामी खानगी इश्तराक तरीक़ेकार के तहत सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए मनसूबाबंदी की गई है। अवामी खानगी इश्तराक के तहत न सिर्फ नाइट बाज़ार को फ़रोग़ दिया जाएगा बल्कि हुसैन सागर के अतराफ बिलखुसूस संजीविया पार्क की सड़क पर हुसैन सागर को तरक्की देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। झील के किनारे आने वालों को झील से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए बैठने की बेहतरीन जगह, खाने पीने के लिए स्टॉल्स वगैरह भी लगाए जाएंगे। हालिया अरसे में फिल्मी दुनिया में फिल्म बाहुबली के जरिए अपनी शिनाख्त बनाने वाले डायरेक्टर SS राजमौली को बीजेपी ने एक नए तनाज़े में घसीटने की कोशिश की है। बाहुबली की शानदार कामयाबी और मुख्तलिफ ज़बानों में फिल्म की डबिंग से राजमौली को गैर मामूली मकबूलियत हासिल हुई और बाहुबली के तमाम अहम किरदार फिल्म बिनों में अपने नुख्श छोड़े हैं। राजमौली ने तेलंगाना के मकबूल कबायली रहनुमा कमरम भीम पर फिल्म तैयार की है, जिसमें जूनियर NTR ने इनकलाबी कबायली लीडर का रोल अदा किया। कमरम भीम ने निज़ाम के खिलाफ न सिर्फ बगावत का ऐलान किया था बल्कि निज़ाम की फौज से गोरिल्ला लड़ाई की थी। वो कबायलियों को अराजी पर हुकूक दिलाना चाहते थे। फिल्मसाज राजमौली ने कमरम भीम की जिंदगी पर तैयार करदा फिल्म का नाम रुद्राम रानम रोधी राम रखा है। फिल्म के ट्रेलर के मंजर आम पर आते ही एक तरफ समाज के मुख्तलिफ गोशों, खास तौर पर कबायली तबके की जानिब से खैर मकदम किया गया, लेकिन राजमौली को गैर मुतवक्के तौर पर बीजेपी से मुखालिफत का सामना करना पड़ा। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर B संजय कुमार ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ इंतबा देते हुए कहा कि बीजेपी फिल्म की रिलीज में रुकावट पैदा करेगी और जरूरत पड़ने पर तशद्दुद से काम लिया जाएगा। बीजेपी को आखिर किस बात पर एतराज है? फिल्म के मेन किरदार जूनियर NTR को एक मुस्लिम नौजवान के लिबास में पेश किया गया, जिसके सर पर गोल टोपी और आंखों में सुरमा है। बीजेपी को इस बात पर एतराज है कि कमरम भीम को एक मुस्लिम नौजवान की शक्ल में पेश किया जा रहा है, जबकि फिल्म साज का ये इस्तेदलाल है कि निज़ाम के खिलाफ लड़ाई में भेष तब्दील करते हुए कमरम भीम ने हिस्सा लिया था, जिसको पेश करने के लिए ऐसा लिबास दिया गया है।